Yes, sir. Yeah, let me Sir. start. Carry on. हाँ सर. सर एरोमेटिसिटी ऑर्डर मतलब हम लोगों का ये था फर्स्ट थिंग दैट मींस फर्स्ट तो थायोपिन आता है. थायोपिन आफ्टर दैट पीडीडीन आता है, तो उसके बाद पायरोल और उसके लास्ट में फ्यूरन. ओके. फ्यूरन लास्ट में मतलब क्यों आता है इसमें बिकॉज फ्यूरन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So oxygen don't that means resonate things, that means resonate not easy that much. So therefore furan has less aromatic character than pyrrole or than thiopin. 1 minute sir, मैं visual बंद कर दिया. Yes sir. Yes, carry on. हाँ वही मतलब थायोपिन में मतलब क्या होता है सल्फर. सल्फर लेस मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो इसलिए मतलब क्या है वो लोड पेयर इजीली इट कैन डोनेट इजीली टू द रिंग. दैट्स व्हाई थायोपिन गेट इजीली लोड दैट मींस एरोमेटिक कैरेक्टर. या एंड pyridine. Pyridine already in aromatic character, whereas pyrrole nitrogen little bit of electronegative but not that much of electronegative than oxygen. So therefore nitrogen ऑक्सीजन के आगे रहते हैं मतलब पहले आते हैं. यस सर. Yes. What the acidity and basicity order in a heterocyclic compound? That means acidity, we all know that acidity or acidity means those which can accept H positive. Okay, is yeah, sorry sir. Those basicity means those which can accept H positive is called basically, or which can donate it lone pair is called basically basic. Okay, so here you can see that nitrogen, that means pyridine. Pyridine, all the lone pair is already in localized form, so it can donate easily. It can donate easily its lone pair to some molecule. So therefore, it is basic in nature, more basic in nature. Okay. Similarly, yeah, more basic. Above all this, pyridine is basic. Okay. And similarly, those which can that means give H positive ion or which can accept this, then it is called basically acidic. Over here, oxygen will be more acidic as furan. एसिडिटी क्या रहता है मतलब ये तो मतलब याद नहीं है मुझे अभी. तो मतलब बेसिसिटी तो इसका ही ज्यादा होगा pyridine का. हाँ सर. आप एक बार बोल देंगे तो अच्छा होता है. बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है? लगाओ, आइडिया लगाओ. सर बेसिसिटी pyridine का होगा. इज इट करेक्ट? यस, pyridine का होगा बेसिसिटी. सबसे ज्यादा pyridine होगा. और pyridine एसिडिटी में एसिडिटी क्या किया है आपने? एसिडिटी सर इसका होगा फ्यूरन का. हाँ. इज इट ओके? यस, राइट. फ्यूरन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक. हाँ सर मतलब सबका और 5 मेंबर का पहले. यस यस, सबका. Okay sir. So electrophilic substitution means those which has that means electron density on the ring, then they can give easily the electrophilic substitution reaction. So basically first thing that is pyridine. Pyridine show more electrophilic substitution reaction. Yes. Pyridine show more electrophilic substitution than the other compound. And this here that sulfur, thiopine will give among the 5 member ring. Thiopine will give more electrophilic substitution. It can pyridine also. Yes, what about indole, quinoline, isoquinoline? Indole. Yes sir. Indole का structure
Okay, so these are basically indole, that is quinoline, and that is isoquinoline. Yeah. So inside quinoline and isoquinoline, okay, you can see quinoline and isoquinoline, the electrophilic substitution take place at the benzene ring, not the heterocyclic ring. Okay, in quinoline or isoquinoline, electrophilic substitution take place at benzene ring because benzene can withdraw this electron, and here the electron density is more. Therefore, this side and this side, electron density, that means electron can attack this position and this position in quinoline system, or in indole system, electron can attack this side, beta system. That means in the heterocyclic ring. Is it correct? इंडोल का यही होगा. Am I correct, sir? This one. Yes. इंडोल का मतलब रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ही होता है, और बाकी क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में बेंजीन रिंग में होता है सर. इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पोजीशन पे होगा और क्यों होगा? सर यहाँ पे दिस साइड एंड दिस साइड पे होता है. दैट मींस 1 2 3 4 5 5 एंड 8 पे होता है. यहाँ पे भी सेम होता है. एक बार देखना होगा ये, मतलब मुझे दिस साइड एंड दिस साइड ही होता है. या तो न्यूक्लियोफिलिक, यार न्यूक्लियोफिलिक यहाँ होता है मतलब में. तो थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा. इसमें ऑर्डर क्या है? क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन में एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर क्या है? Quinoline and isoquinoline, no idea, sir. No idea. लगाइए दिमाग लगाइए थोड़ा. ये मतलब ज्यादा बेसिक हुआ. Isoquinoline I think more basic because here electron easily, that means hydrogen can easily attract or electron can easily connect. Here due to some this hydrogen, this steric image will be there something. Quinoline is less basic than isoquinoline, I think so. Quinoline is less basic than isoquinoline. Is it correct? Yes, yes. प्रीडीन का ऑक्साइड प्रीडीनियम आयन और ऑक्साइड एन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बनाता है. प्रीडीन किस तरह की रिएक्शन करता है तो बनाता है? सर उसमें मतलब सर प्लीज कैन यू प्लीज अगेन दैट मींस द क्वेश्चन. pyridine का जो pyridine N oxide, yes, with the help of MCPBA we can form pyridine N oxide. Yes sir, that means this can give some type of reaction. Those are basically which is called one is Filsmeyer reaction is there, I think. Nucleophilic, is it correct sir? Filsmeyer reaction देता है sir. It can give electrophilic substitution reaction also. Yes sir. It give electrophilic substitution reaction basically. Electrophilic substitution reaction at alpha and gamma position. This one give electrophilic substitution reaction is alpha and gamma position. This pyridine N oxide electrophilic substitution reaction, and it can give nitration reaction also. Nitration reaction also. Yes sir. Nitration also at gamma position. Yes sir. Is it correct sir? Yes. Electrophilic substitution and nitration देता है. With the help of metachloroparbenzoic acid, we get with the help of metachloroparbenzoic acid we get that is called what it is called pyridine N oxide. With the help of metachloroparbenzoic acid we get
pyridine N oxide. Yes, sir. यस pyridine N oxide. pyridine किस किस तरह की रिएक्शन देता है? पायरोल, pyridine. Sir, basically, they give electrophilic substitution reaction. They give Yes. that is called nucleophilic substitution reaction also, and they can give that is Mannich reaction also. Yes, sir. Mannich reaction is those Reduction also. also electrophilic substitution. Yes, yes. Reduction, Barch reduction is sir. Sir. basic character, bromination, nitration, sulfonation, nucleophilic Sir. All are substitution reaction. electrophilic substitution reaction basically. At beta position, pyridine give electrophilic substitution reaction at beta position basically, beta position or electrophilic beta position. Yes, sir. And it can give partial. We can reduce pyridine by partially also with the help of hydrogen, platinum, or like Barch reduction also. We can reduce the pyridine with the help of sodium, ammonia, or with the help of hydrogen, platinum also. With the help of hydrogen, platinum also. But pyridine, that means pyridine, we can reduce the pyridine, but pyridine is basically resist to oxidation. But with the help of metachloroperbenzoic acid, we can oxidize. Yes, we can oxidize the nitrogen atom. Yeah, Yes. and pyridine nucleophilic substitution reaction occur basically at beta position. Sorry, alpha position. Nucleophilic substitution reaction occur basically at alpha position. Is it okay, sir? Alpha position Yes. and gamma position. Alpha and gamma position, nucleophilic substitution reaction. And sir, electrophilic substitution reaction take place at beta position. Electrophilic at beta position, nucleophilic take place at alpha and gamma position. Yes. Next, move on indole. What about indole? Sir, indole मतलब sir. Indole तो मतलब one. Sir. Structure of indole. Which type of reaction Yes. shows indole? This is the base. That means one pyridine ring. Sorry. Pyrrole ring with benzene. Pyrrole ring. That is the indole structure. Similarly, indole can give electrophilic substitution reaction and nucleophilic substitution reaction. Electrophilic and nucleophilic substitution reaction. And pyridine, indole में मतलब क्या होता है? Indole is like that is one amino acid is there. That is tryptophan. Tryptophan is there. Is same thing. Or sir. What is Fischer indole synthesis and Weckler synthesis? Sir, Fischer indole synthesis तो मतलब क्या बोलते हैं? Aniline which sir क्या one is ketone is there. Aniline and ketone का reaction होता है. Yes sir. Not sir aniline. That name I forgot. What it is called basically? 1 minute sir. ये था sir. Aryl hydrogen. Aryl hydrogen. Yes sir. That is. Right. That is. Yeah. This one sir. You can check. This one. And yeah. This and this reacted Fischer indole. Correct ना? Yes. In presence of Lewis acid. एक बार और रिवाइज करने से पूरा Yes, पक्का हो Lewis जाएगा. acid BF3. Yes, presence of. In presence of Lewis acid. Synthesis of 2-methyl indole can be achieved by the taking the phenyl hydrogen of acetone. Weckler process क्या है? Weckler process क्या करता है? Indole. Sir, Bislar. Yeah, Bislar synthesis. बिस्लाडो मतलब क्या था उसका नेम तो पता नहीं मतलब सर कुछ सर. Aniline plus 3 bromo butane 2 के साथ रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ HCl. ओके सर. 2,3 डाइमिथाइल इंडोल बनता है. 2,3 डाइमिथाइल इंडोल. यस. एक बार मतलब सर एक काम करता हूँ क्या मतलब एक पेज में मतलब सिंथेसिस का रिएजेंट वगैरह एक बार लिख के
हेटेरोसाइक्लिक में बहुत सारा सिंथेसिस है ना, इसलिए मतलब दिक्कत होता है थोड़ा। एक बार लिख के मतलब एक छोटा सा पेज था, मतलब बीएससी में डिग्री में था, वो भी इंडोल में मतलब कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होता है? इंडोल में कौन कौन सी रिएक्शन होती सर है? बीटा 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 पोजीशन में होता है, मतलब रिंग में ही होता है। इंडोल में बीटा पोजीशन में रिंग में ही होता है सर। यस, इज इट? कौन कौन सी रिएक्शन यस। देता है इंडोल? इंडोल सर बेसिकली it give electrophilic substitution reaction, or it give Mannich reaction also sir, Mannich reaction also। हाँ सर, Mannich ब्रोमिनेशन, reaction। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाँ, फ्रीडल हाँ क्रैक, सर, all are डाइएज़ो electrophilic कपलिंग, substitution। राइमर्टीमैन। हाँ, राइमार्टाइमर में रिंग एक्सपांड हो जाता है इसका। यस यस, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। यस, C3 पोजीशन। हाँ। नेक्स्ट मूव ऑन क्यूनलीन। हाँ यस, सर, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनलीन एंड हाउ टू प्रिपेयर। क्विनोलिन सर डिफर, इसमें सर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन से ही प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। एनिलीन, या विद द हेल्प ऑफ एनिलीन वी कैन प्रिपेयर दिस। यस, इज इट करेक्ट? एनिलीन और एक कीटोन लेना सही है हमें। कीटोन तो क्या होगा सर, पता नहीं इसको, मतलब डायरेक्ट याद नहीं रहता है ये पूरा, और मतलब एक बार रिवाइज करने से हो जाएगा ना। बिल्कुल, क्यूनलीन में हम स्क्रिप्ट सिंथेसिस से बनाते हैं क्यूनलीन एनलीन हाँ सर, प्लस। क्राफ्ट सिंथेसिस था, यस यस, सर। स्क्रिप्ट सिंथेसिस से हम बनाते हैं एनलीन प्लस प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। एनिलीन ग्लिसरॉल एंड के साथ रिएक्शन बनाएंगे, ग्लिसरॉल प्लस एनलीन, तो बन जाएगा हमारा हाँ क्यूनलीन। सर। हाँ क्यूनलीन किस तरह की रिएक्शंस देती है, कुछ आइडिया है? सर, सेम थिंग, मतलब क्विनोलिन में हम लोगों का एमाइनेशन भी होता है, उसके उसमें मतलब ऑक्सीडेशन वगैरह भी होता है, और उसमें मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता डक्टोफिलिक है। भी होता है, यस, ब्रोमिनेशन भी, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन भी। इलेक्ट्रोफिलिक लेकिन सर बेंजीन रिंग में होता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइलेशन ऑफ, वी कैन डू एल्काइलेशन ऑफ क्विनोलिन आल्सो बाय रेजार्ट रिएक्शन। एल्काइलेशन ऑफ क्विनोलिन बाय रेजार्ट, दैट मींस PHCOCl। यस सर, PHCOCl, और बेस यूज करते हैं, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड देते हैं, तो रेजार्ट रिएक्शन भी होता है। एक नेम रिएक्शन है क्विनोलिन का, रेजार्ट रिएक्शन। यस सर। यस, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, हम्म न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन। हम्म। इनके एप्लीकेशन Am क्या I- है, क्यूनलीन के एप्लीकेशन? हाँ सर, क्विनोलिन का सर मेनली तो हम लोग वो बोलते हैं, मतलब मलेरिया का जो बीमारी होता है उसमें जो क्विनाइन बनाते हैं और क्लोरोक्विन बनाते हैं, वो मतलब क्विनोलिन का ही आता है। और उसमें हम लोगों का एक है, एक समथिंग लाइक पेपावेराइन, समथिंग लाइक एक था, सिंथेसिस ऑफ पेपावेराइन, या दैट इज मेड बाय दिस पेपावेराइन था, या कुछ था सर, एक पेपावेराइन ही होगा क्विनोलिन का। आइसोक्यूनिलीन, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ आइसोक्यूनिलीन? एक्सप्लेन कीजिए आइसोक्यूनिलीन। आइसोक्विनोलिन का साथ साथ इस यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है। और सर इसका एप्लीकेशन हम लोग मतलब मेडिसिनल में ही यूज करते हैं, आइसोक्विनोलिन भी। आइसोक्विनोलिन हम कैसे लोग, बनाते हैं इसको? हाँ सर, कैसे बनाते हैं, यस, हाउ तो टू उसको प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर टू आइसोक्विनोलिन, 1 मिनट सर। आइसोक्विनोलिन क्या बोलते हैं उसको, वेसलर नेपेरस की सिंथेसिस। हाँ सर। वेसलर जो सिंथेसिस होती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ना हम। हाँ सर, एक बार देखना होगा ये, यस, यही है मतलब आपको, यार। इसकी आप इलेक्ट्रोफिलिक बेसिसिटी, ब्रोमिनेशन वही, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाँ हाँ। ऑक्सीडेशन वही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एप्लीकेशंस क्या है, हम्म, वो सारी चीजें आप देख लेना। मैंने आपको भेज दिया है, एक बहुत अच्छी चीज है, PDF भेजिए, उसमें हेट्रोसाइक्लिक हाँ बहुत सर। अच्छा दिया हुआ है, अच्छा, एप्लीकेशन भी है उसमें सारे। ओके सर, ठीक है, तो हाँ बेसिकली
हो जाएगा। हेटेरोसाइक्लिक का तो क्या यूजेस क्या है, इनके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के क्या यूजेस है सोसाइटी ह्यूमन लाइफ बेसिकली, यूज करते हैं हम? हाँ सर, हेटेरोसाइक्लिक में तो हम लोगों का ह्यूमन लाइफ में तो मेन एप्लीकेशन तो वो मतलब जो मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड हीम वगैरह बनाते हैं, हीमोलिगैंड, हेम लिगैंड फॉर हीमोग्लोबिन और फॉर क्लोरोकिन, और कलर पिगमेंट जो रहता है वो बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक का ही है। पोरफायरिन रिंग सिस्टम और कोरिन रिंग सिस्टम, दैट मींस हाँ मैग्नीशियम का, क्लोरोफिल का कोरिन रिंग सिस्टम, और इन दैट मींस विटामिन B12, या, and in heterocyclic we can form vitamin, that is B6 also, vitamin B6 also there. From the we can prepare vitamin B6. Then we can prepare many, that means medicine like for anti-malarial, that means chloroquine, quinine, or some antimicrobial medicine also. And we can form some like of analgesics, or some like of that is called, with the help of indole system, we made some, one name is there, one name सेस्क्वाटर, इसका नेम एक था, वो मतलब माइग्रेन में ही यूज करते हैं, माइग्रेन में भी यूज करते हैं, माइग्रेन बीमारी में भी यूज करते हैं, वो भी आता है। मतलब ऑल काइंड ऑफ, दैट मींस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ हेटेरोसाइक्लिन वी कैन फॉर्म मेडिसिन, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन वी कैन फॉर्म। यस सर। हाँ सर। यस। कोई ड्रॉबैक वगैरह क्या है? ड्रॉबैक तो उसका मतलब क्या होगा, मतलब वो बेसिकली इन जो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे मतलब साइड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, मतलब नाइट्रोजन से भी अटैक होता है। तो यही एक ड्रॉबैक होगा शायद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, नाइट्रोजन में भी अटैक होता है। यस सर। और तो नहीं है इतना ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ हेटेरोसाइक्लिक, नो सर, नो आइडिया। और बताइए हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। हेटेरोसाइक्लिक सर, और क्या बोलूं मैं, वहाँ पे दैट इज ऑलमोस्ट यही यही है जो है। लेकिन सर उसमें जो सिंथेसिस वगैरह है वो थोड़ा मतलब देखना होगा मुझे, अच्छा मतलब याद करना होगा, बाकी तो ठीक है, याद करना होगा जो रिएजेंट है वो, मतलब एक बार। और तो मैकेनिज्म मतलब सबका एक ही है, ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सबका एक ही है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होता है, उसके बाद रीअरेंजमेंट होके मतलब हो जाता है, ये मैकेनिज्म सबका एक ही है ऑलमोस्ट, स्क्रैप वगैरह, फिशर वगैरह का। हाँ सर। यस, मैकेनिज्म सबका वैसा ही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई हाँ सर। प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको हम्म। रिमाइंड कर लेना जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हाँ आए। सर। हाँ सर। और बताइए, सर एक मतलब नेक्स्ट आज नेक्स्ट टॉपिक क्या करके आएंगे? नेक्स्ट टॉपिक तो सर मैंने अभी तो मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया, ओनली स्पेक्ट्रोस्कोपी आंसर यही है, क्वांटम ही है मतलब मेनली। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इनऑर्गेनिक देख सकता हूँ सर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवाइज भी हो जाएगा मेरा, वो देख सकता हूँ कल। और सर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यस। हाँ सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सा रह गया है? मतलब मेरा मतलब क्या हुआ है फिजिकल में, मतलब उस दिन मतलब क्या मैंने पढ़ा था, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है ना उसमें मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाए तो पढ़ने का मन नहीं किया। तो इसलिए मतलब फिजिकल नहीं हुआ अभी तक, मतलब सिलेक्शन रूल वगैरह जानता हूँ ये सब, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिजिकल में, बाकी तो हो जाए मतलब हो गए मतलब ऑलमोस्ट ये इनऑर्गेनिक देख लिया मैंने, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दो ही था, ये मोसबार एंड दिस वन, ये ईपीआर, ये देख लिया मैंने अच्छे से, कल मोसबार एंड ईपीआर कर सकते हैं। यस सर। और सर क्वांटम का मैंने अभी तक वहां तक किया, आज मतलब हाइड्रोजन एटम तक किया है मैंने, हाइड्रोजन एटम तक ऑलमोस्ट वहां तक हो गया, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस वगैरह वो हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा था आपको बोला था ना मैं, मतलब जो एचआर का क्वेश्चन है, सर सुन रहे हैं ना आप? यस, यस, यस।
सर एचआर का जो क्वेश्चन है वहां पे मैंने ये लिखा था, हाँ। 1 मिनट सर। Why you did not join PhD? That question. यस That means मैंने थोड़ा मतलब यहाँ पे क्या था। 1 मिनट सर, आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम टुडे। आई एम मतलब यहाँ इसमें भी थोड़ा थोड़ा मतलब ये भी कर रहा हूँ सर। यहाँ पे जो लिखा था मैंने मतलब परस्यूइंग पीएचडी मीन ए सिग्निफिकेंट कमिटमेंट। ओके सर। I यस have chosen not to go for PhD at this time for the following reason. Basically, I am satisfied with my current role as a lecturer and wish to continue teaching and sharing knowledge. ये मतलब हटा दूं क्या, मतलब I am satisfied with my current role as a lecturer, ये मतलब ऐड करूं या नहीं, नहीं आपने करना होगा ना? पीएचडी ज्वाइन नहीं किया। जैसे आपसे पूछा व्हाई यू डिडंट ज्वाइन पीएचडी एंड व्हाई विल यू बिकम ए लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन असम। असम की बात है ना, हाँ तो 21 की बात है, अभी तो बात अलग हो। अब क्वेश्चन दूसरे होंगे। हाँ तो पीएचडी का हाँ ऐसा है कि पीएचडी का बोल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीएचडी एंड रिसर्च बिकॉज माय फैमिली प्रेशर्स, इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी लो, फैमिली प्रेशर हाँ सर। एंड फ्यूचर इज नॉट सिक्योर इन पीएचडी। अब पीएचडी करेंगे तो उसको कोई फ्यूचर का कोई सीओटी नहीं है। आफ्टर पीएचडी व्हाट विल डू, कुछ नहीं है। तो उसके कारण ये पॉइंट आप 4-5 पॉइंट बता सकते हैं, इसके कारण मैं लेक्चर बनना चाहता हूँ और मैं एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट वन इज मैंने रिटन क्वालिफाइड किया, नाउ क्वालिफाइड द रिटन एंड प्रेजेंट इन योर फेस इज इंटरव्यू। तो आई एंड बाय कैलिबर एंड कैपेसिटी टू क्रैक द एग्जाम एंड यस गेटिंग द जॉब। यस और ये पॉइंट हो गए पीएचडी के रिगार्डिंग। और इंटरेस्टेड है, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो इसलिए हाँ सर, तो वही बोलूंगा ना। हाँ 4-5 पॉइंट ऐसे। मतलब ये हाँ 21 हाँ हाँ क्वेश्चन किया गया। अब क्वेश्चन आपसे दूसरे होंगे। अब क्वेश्चन आपसे ये भी होंगे क्योंकि अब तो क्वेश्चन ये जैसे ये भी क्वेश्चन आप जैसे आपने साढ़े 3.5 ईयर से आप लेक्चरर हैं, तो आपने अभी पीएचडी हाँ ज्वाइन क्यों नहीं की है? व्हाई विल यू नॉट ज्वाइन पीएचडी? बिकॉज विदाउट हाँ यस पीएचडी सर। you will be not promoted in assistant professor to associate professor and professor. What the reason? अभी साढ़े तीन सर तो इसमें अभी मैं आपने अभी तक पीएचडी ज्वाइन क्यों नहीं की? हाँ तो मतलब वहाँ पे एक रीजन है मेरा। तो मतलब क्या था, हम लोग एक आसाम गवर्नमेंट से एक एनओसी निकला था, मतलब इफ यू आर इन ए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देन यू कैन नॉट ज्वाइन और दैट मीन्स अप्लाई फॉर एनी जॉब और एनी दैट मीन्स पीएचडी इन 2 years, within 2 years. So that's why I am, that means in that time I was not able to join any PhD. In 2021 I have joined. After that also COVID is there ना, lockdown is there. So 1 year तो ऐसे ही चला गया। तो उसके बाद मतलब पीएचडी के लिए एनओसी हाँ, तो वगैरह जो ही मतलब कंडीशन है वो कंडीशन जो ट्रू है, जो आपको लगती है वही आंसर हाँ देना। अभी हम डिस्कस करेंगे, हाँ अभी अपनी केमिस्ट्री हो जाने दो। अभी केमिस्ट्री हो जाने हाँ दो, अभी हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपके जो टाइट्रेशन, उन चीजों पे बहुत वर्क करना था। तो कह रहा हूँ टाइम कम है अपने पास, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ डेली 2 मॉक लीजिए आप, क्योंकि टाइम अब हाँ सेकंड सर। गया, 2 सितंबर तो गया, अब थर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड आने वाला है अभी कुछ टाइम में। तो इस तरह हाँ से मैं सर। आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप टाइम कम है तो जितना ज्यादा करेंगे उतना रिवीजन हो जाएगा अपना, और जो टाइम बचेगा उसमें जो हाँ सर रिव्यू क्वेश्चन अच्छा है जो हुआ। माइंड में चलते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। यस सर। यस। यस सर मतलब नेक्स्ट हाँ सर। नेक्स्ट डे हम क्या डिस्कस करेंगे? सर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ईपीआर मोसबार एंड सर वहाँ पे ईपीआर, मतलब। मॉसबीआर और सर मतलब क्वांटम का मैंने अभी तक कोई मतलब नहीं, क्वांटम कम्युनिकेटर का वगैरह। बेसिक जो भी आपने क्वांटम का पढ़ा है, बेसिक 1D 2D 3D, उसके बेसिक चीजों को देख लेंगे। ओके सर ठीक है। तो मतलब वहाँ वहीं तक चलूंगा तो वहाँ पे कल क्वांटम का। तो उसके बाद मतलब हम लोग पूरा अच्छे से और बाकी सब में अच्छे से ध्यान देंगे। सर ऑलमोस्ट तो टॉपिक हो गया, मतलब गैसियस स्टेट का ये सब भी आ सकता है, मतलब वो हाँ, सब कुछ गैसियस आता स्टेट होगा। भी करेंगे, जो न्यू टॉपिक है, जैसे गैसियस स्टेट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, मोलरिटी वाले वो टॉपिक, कॉलीगेटिव हाँ वो भी प्रॉपर्टी। मतलब कल आप पूछ सकते हैं ऐसे, मतलब कोई कल नहीं, आप आप पूछ बता सकते हैं देना ये तो मतलब। जो टॉपिक आपको लगते हैं, हाँ आप बेसिक किए हुए हैं आपने। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। हाँ सर। और ये केमिकल वगैरह तो मतलब गैसियस स्टेट में, इंचेस लेवल। गैसियस स्टेट में वही आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस, वो उसी में ही आ जाते हैं ना।
हाँ मतलब वो जो पोस्टुलेट वगैरह होता है और उसका मतलब एजम्पशन जो मतलब ड्रॉबैक थे, वही वही पूछेगा। हाँ सर, वॉल्यूम करेक्शन ये वगैरह मतलब वैंडरवाल केस का। हाँ हाँ हाँ, वही पूछेगा। बाकी तो इतना तो। और ऑर्गेनिक का सर क्या देखूं मैं? और बाकी तो मतलब ऑर्गेनिक का हेटेरोसाइक्लिक भी हो गया, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री भी हो गया, और नेम रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म और भी। रीजेंट, नेम रिएक्शन और रीजेंट और देखने हैं आपको बेसिक। हाँ रिएजन तो ये तो मतलब आता है अच्छे से। बाकी तो ऑर्गेनिक में तो अच्छे से आता है, बाकी यही मतलब थोड़ा मतलब क्वेश्चन करने का कैपेसिटी है, लेकिन मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करने का ये मतलब सब कुछ डीप तक, इतना डीप तक नहीं जानता हूँ क्योंकि एनालिटिकल नहीं है ना मेरा। बाकी तो अच्छे से कर ले सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा आता कोई है। नहीं कोई नहीं, इसीलिए तो 1 महीने तैयारी कराता हूँ मैं। रिटन हाँ एग्जाम सर। और इंटरव्यू में क्या है, इसलिए तो 1 महीने आपको तैयारी करा, 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो इसीलिए तो मैं हाँ कहता हूँ सर। 1 महीने आप मुझे दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता होगा ना, फिर भी मैं ट्रेंड कर हाँ दूंगा, प्रेशर कर करके 1 महीने हाँ में यस सर। सब अच्छा अभी तो एक्सपीरियंस। मतलब। बस ये है कि डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए, 1 महीने, 1 मंथ। यस सर। यस सर। वही ठीक है, तो फिर कल बहुत। मिलते हैं हम। कल न्यू टॉपिक हाँ है, सर जो मतलब। आपके जो टॉपिक है वो मुझे बता देना, उनको हम फिर देख लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो मतलब आपने भी मेरे साथ बहुत मतलब मैं जो कोर्स में बहुत मेहनत करता हूँ, मतलब जब टेस्ट सीरीज निकालता हूँ ना, मतलब पीजी एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ पे मतलब बहुत मेहनत लगता है टेस्ट सीरीज में। मतलब हर दिन क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनाना, तो उसके डेली बाद क्वेश्चन मतलब। बनाते होंगे ना आप वहाँ पे क्वेश्चन हाँ टेस्ट डेली बना के क्वेश्चन। देते हो। और मतलब हाँ मतलब उसमें तो मतलब क्या होता है, फीस भी मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। मतलब 399 में पूरा टेस्ट सीरीज दे देता हूँ, मतलब अराउंड 1.5 महीना। तो मतलब तो बहुत टेस्ट सारा कितने दिक्कत हो टेस्ट जाता 399 में आप कितने टेस्ट देते हैं? है। अराउंड सा 30 35 टेस्ट। 30 है। मैं 1500 में, उसमें भी ऑफर चला रखा है, 1500 में 400 टेस्ट हैं, सारे PYQ हैं, उनके सॉल्यूशन हाँ है, सर। असाइनमेंट है, वो सॉल्यूशन है, हाँ एप्टीट्यूड, सर। सब मैंने कितने 400 टेस्ट दे रखे हैं, और मटेरियल भी है। केमिस्ट्री के शॉर्ट हाँ नोट्स सर। मेरे, ये जो नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ बना बना के डाली, ये मेरे नोट्स हैं। उनके हाँ केमिस्ट्री सर। के भी शॉर्ट नोट, जीएस के भी शॉर्ट नोट्स, और भी जितने एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, NFL, वो उनके भी बना बना के मैं बनाता ही रहता हूँ। देखो आप देखो, सारे ड्रीम एक खुली रहती है, वाइट पेज पे लगा ही रहता हूँ रात में। और कोई रुपए तो ज्यादा वही। मिलते नहीं है, रुपए कोई ज्यादा तो है नहीं। मार्केट में तो हाँ सर। 1100 में 30 40 टेस्ट देते हैं, और यहाँ 400 400 टेस्ट दिए हुए हाँ हैं। सर। मतलब इससे पहले मतलब मैंने लिया था, मतलब जब मैंने आईएफएस में लिया था, आईएफएस में टेस्ट सीरीज लिया था, मतलब जब मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मतलब वो लोग क्या कहते हैं, एक ही टेस्ट को मतलब रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है, वही मतलब ईयर टू ईयर चला रहा है, ऐसा है हाँ वही उन चलाते लोगों हैं, का। न्यू नहीं बनाते। वही चलाते, मैं तो न्यू नहीं डेली बनाते। अपडेट करता रहता हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में 100 टेस्ट बनाए थे, आपको याद हो आपके टाइम में, 100 से 200 हो हाँ गए, सर। फिर 300 हो गया। वो अपडेट करता रहता हूँ मैं, बहुत सारी चीज अपडेट करता रहता हूँ, पर शॉर्ट नोट बनाता, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है ना, वो एक तो लोगों की हाँ डिमांड है शॉर्ट नोट्स हो और टेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। सबसे ज्यादा डिमांड है शॉर्ट नोट्स की, लॉन्ग नोट्स नहीं, शॉर्ट ट्रिक वाले नोट्स हो जो कम टाइम में। लोग क्या सोचते हैं, 1 महीने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें उससे सब हो जाए, लेकिन जब तक हाँ सारी सर। चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक 1 महीने में क्या हो जाएगा, आप बताओ। हाँ सर वही। टेस्ट और सर सीरीज का मतलब। मतलब ये है कि आपके हाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप प्रैक्टिस कीजिए। सर एक बात बताऊं मैं, मतलब आपका जो पहला वाला चैनल था ना, वो हाँ जो मतलब। हाँ उसमें मतलब वो देख के ही मैंने मतलब पहले जब एमएससी का टाइम था, तो तब तो मेरा इतना अच्छा रैंक नहीं था, तो आपका चैनल देख के मतलब 1 महीना देखा पूरा, पूरा टोटली मतलब उससे ही गेट क्लियर हो गया था उस टाइम। मतलब सब कुछ पहले तो वो क्या है, सब। वो बंद हो गया था, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। लेकिन अब हाँ तो अब मैं सिर्फ वही चीजें डालता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता वीडियो वगैरह। अब हाँ सर। वीडियो के लिए मैंने और कैंडिडेट को रखा हुआ है, तो उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, उसमें बहुत सारी, तो और लोग लगे हुए अच्छा। हैं। अब मैं सोच रहा हूँ टाइम निकाल के मैं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अब और बनाऊंगा अच्छी, क्योंकि अब देख रहे हैं आप 10 घंटे मौक लेता हूँ, कहाँ टाइम मिलेगा, तो कहाँ से बनाऊं। लेकिन नहीं बना नहीं रखी है, मिलता है। तो और लोग काम कर रहे हैं, डाउट के लिए अलग एक कैंडिडेट रखा हुआ है, प्रॉब्लम के लिए और हाँ लगा हुआ है। हाँ। तो अच्छे से मतलब यही सर, अच्छे से हो जाएगा तो मतलब आपको मतलब क्या बस मतलब हो जाए इतने आपका मतलब। सिलेक्शन, वो बढ़िया है हाँ सर। वो। हाँ सर। लेकिन ये मतलब दो मतलब निगेटिव थिंग्स है, एक तो पीएचडी नहीं है और एक लास्ट में हूँ,
यही दो नेगेटिव थिंग है, बाकी तो पीएचडी मतलब नहीं है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हो जाएगा। हाँ सर, बाकी तो हाँ सर, ठीक है सर, तो थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ। कल मिलते हैं, ओके।